Hello friends, welcome to the Physics with Vivek channel. I am Vivek Kumar, bringing as a physics mentor and career counselor, also a Vedic math expert. Today, I will be talking about the current electricity, which topic is chosen on the basis of the previous patterns of JEE Mains. Most number of question coming from the current electricity among all the chapters. Today I will talk about the current electricity topic, in which I will teach you today what is current, some properties of the current, and drift velocity, current density, and relation between the drift velocity and the current, and mobility. So let's start with the current. Firstly, a question comes in your mind, what is current? Thus, definition for current is written in all the books is rate of flow of charge. What? Rate of flow of charge through any cross section of a wire with respect to time. क्या चार्ज का फ्लो होना टाइम के रिस्पेक्ट में विथ अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट. जस्ट आई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टाइम. दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द करंट. तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी. This is given through a cross section. Just like a wire, through this cross section how much charge is passing in a unit time, that is known as current. फिर इसके हम यूनिट देखते हैं करंट की. तो करंट का यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कूलम पर सेकेंड. यूनिट क्या हुआ करंट का? कूलम पर सेकेंड. और इसी का नाम दिया गया एम्पियर. क्या? एम्पियर. तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, विच इज SI यूनिट ऑफ द current. Now the question will be asking from I equal to Q by T. From electrostat, you know that Q equal to NE. What? Q equal to NE. Then I can be also written as what? I equal to NE by T. Examiners ask to you, if they give the number of electrons passing through a wire through a particular cross section in a time t, then what will the current passing through that wire? You can find easily. So we note the current is charge upon time. For the charge finding, we note the NE formula equal to NE, then we find the charge, then we put this charge in I equal to Q by T, then we will find the current. Not only wire in a straight wire, examiner can ask from you that the wire is circular, in circular form, this like, and charge is flowing Q, then find current. So we can write for circular Q by 10 for one revolution time period. So 1 by time period is frequency, then QF. If frequency is given, then we can also find the current. Not frequency, they give the angular frequency, then we note that frequency 2 pi f equal to angular frequency, then f equal to क्या? F equal to omega by 2 pi. Then put I equal to q omega by 2 pi. Either you find this, either you will find t equal to 2 pi by omega. So there are so many types can be asked from you. Either if they give angular frequency, then find the current. They give the time period, then find current. Then give linear frequency, then find the current. There are so many types of question can be asked from you using only the definition of current. तो दिस शुड बी कीप इन द माइंड कि क्वेश्चन कैसे आस्क होते हैं. अब क्या कहता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में, मान लीजिए इधर पॉजिटिव चार्ज इस साइड मूव कर रहा है तो इसके करंट की डायरेक्शन ये होगी. अगर इलेक्ट्रॉन मूव करा रहे तो मतलब निगेटिव, तो निगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है. निगेटिव चार्ज के अपोजिट में और पॉजिटिव चार्ज के सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? करंट इज सेम फॉर ऑल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. मतलब हम क्या करते हैं कि एक वायर है इस तरह से बना हुआ, यहां से हमने करंट दिया
तो यहाँ से जितना करंट पास करेगा यहाँ हर क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या होगा, सेम करंट जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया पर वो डिपेंड नहीं करेगा कि कितना क्रॉस सेक्शन छोटा है तो कम करंट जाएगा, क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो ज़्यादा करंट जाएगा, इस तरह से नहीं, वो करंट हर जगह यूनिफॉर्मली जाएगा। अब आता है कैरियर ऑफ कैरियर ऑफ चार्ज क्या क्या होता है। इन मेटालिक करंट क्या होता है, करंट किसके कारण फ्लो करता है, ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या है, मेटालिक करंट में। और जब इलेक्ट्रोलाइट और आयोनाइज्ड गैस के बारे में बात आती है तो उसमें करंट क्यों फ्लो करता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन। तो चार्ज कैरियर इन इलेक्ट्रोलाइट एंड आयोनाइज्ड गैस क्या हो गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। नेक्स्ट अब आता है इलेक्ट्रॉन मेटल कंडक्टर मूव करता है तो उसकी एक वेलोसिटी होती है, जो उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी उसको क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल मूव रैंडमली विथ अ वेरी हाई स्पीड ऑफ द ऑर्डर 10 to the power 5। ये क्या है, 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड को क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी। मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये मेटल आपने पढ़ा होगा एटम्स में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि जो मेटल है इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या होता है, रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो ये जो रैंडमली मूव कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में, उस समय उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ड्यू टू द टेम्परेचर होती है। किसके कारण, ड्यू टू द टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर के कारण जो वेलोसिटी आ रही है वो क्या, उसको क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी। और ये थर्मल वेलोसिटी कितने का ऑर्डर होता है, 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेरी हाई वेलोसिटी से मूव करता है। तो उसकी कंक्लूजन क्या आता है कि किसी भी डायरेक्शन में एवरेज थर्मल वेलोसिटी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का निकाल लेंगे तो वो कितना होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। अब आ रहा है कि जब रैंडमली मूव कर रहा है तो कोलिजन भी कर सकता है कि दो सक्सेस। अब उसको कितना टाइम लग रहा है, मतलब रिलैक्सेशन टाइम समझते हैं क्या हो रहा, क्या है द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ द पॉजिटिव आयंस इन द मेटेलिक लैटिस। तो जितना दो सक्सेसिव कोलिजन इलेक्ट्रॉन का होने में किसके साथ, पॉजिटिव आयन के साथ समय लगता है, उसको क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। नेक्स्ट देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन क्या करता, when a potential difference is applied across the ends of conductor, the free electron it move with average velocity opposite to the direction of electric field, which is drift velocity of electron। मतलब मान लेते ये कंडक्टर है, अब इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इस डायरेक्शन में। अब पता है कि पहले से ये कंडक्टर है तो इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे ये सब, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा कि जैसे ही चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो क्या होता है, उस पर कोई फोर्स लगाते हैं। फोर्स कितना लगाता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा, F इक्वल टू ई इंटू कैपिटल। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, अपोजिट। नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पे डायरेक्ट इधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा सभी इलेक्ट्रॉन पे। तो इसके कारण क्या हो गया, सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इस डायरेक्शन में मूव करना चालू हो गया। तो इसके पास से क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगा, वो फिर स्मॉल होगा और ये सभी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो जिस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चार्ज मूव करना चालू करेंगे उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने तो ये पता कर लिया कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो हम इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। हम पता है न्यूटन्स लॉस क्या, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, ई कैपिटल ई बटे एम। मतलब इस एक्सेलरेशन से चार्ज क्या हो रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो अब हम जानते हैं कि जब चार्ज मूव कर रहा है तो हम उसके डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस चला होगा। तो एस इक्वल टू ई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं। तो कितना डिस्टेंस चला होगा, एवरेज क्या है, उसकी इन डायरेक्शन में मूव करने की एवरेज क्या है, जीरो। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन क्या आ गया, कैपिटल ई बटे कैपिटल एम। और दो सेक्शन कोलिजन का टाउ को तो टाई स्क्वायर लिख लेते तो क्या हो गया, हाफ ई कैपिटल ई बटे एम
टाउ स्क्वायर, मतलब इतना दोनों कोलिजन के बीच में डिस्टेंस रहेगा, मतलब कि यहाँ से चलना चालू किया था ये मतलब ये डिस्टेंस उतने कोलिजन टाइम में फर्क पड़ आ जाएगा, मतलब इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लिया होगा। अब हमें निकालना क्या, वेलोसिटी। तो इतने डिस्टेंस चलने में इसको कितने टाइम लग रहे हैं, टाउ, उतना चलने में कितने लग रहे हैं, टाउ। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या लिखेंगे, इसी को कहते हैं मीन फ्री पाथ। इसको क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। दो सक्सेसफुल कोलिजन में कितना डिस्प्लेसमेंट दोनों के ऊपर रह गया, उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय रिलैक्सेशन टाइम। क्या, रिलैक्सेशन टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मीन फ्री पाथ कितना निकल गया, हाफ ई कैपिटल ई बटे एम टाउ स्क्वायर बटे रिलैक्सेशन टाउ क्या, टाउ। तो एक टाउ से कट गया तो 1/2 कैपिटल ई बटे एम टाउ। ये क्या आ गया, रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या हो गई ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, हाफ वी डी इक्वल टू 1/2 चार्ज कैपिटल ई बटे एम टाउ। यह हमारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जनरली कुछ बुक में क्या रहते हैं कि वो हाफ को कंसिडर नहीं करते हैं एवरेज थ्योरी, तो ई बटे एम टाउ भी कहीं कहीं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो ये तो मैथमेटिकली आया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बस इसकी इंटरप्रिटेशन क्या क्या कर सकते हैं, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, क्या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कोलिजन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, तो टाउ क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो टाउ डिक्रीज कर जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसी तरह से आपसे कह गया कि हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर मूव करे, इसके जगह किसी ई बट्टे एन टाइम्स का चार्ज मूव कर रहा, समथिंग इसका मल्टीपल ऑफ चार्ज मूव कर रहा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ सकता है। मान लीजिए कि हम इस इलेक्ट्रॉन को हटा के रिप्लेस कर दिया म्यूऑन से, जो जनरली बोर्ड्स मॉडल में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, म्यूऑन से हमने रिसर्च किया जिसका चार्ज समथिंग समथिंग है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो बताइए कहाँ पर एनर्जी का फैक्टर पूछा जाता है, वेलोसिटी का। तो उसी तरह से यहाँ से भी पूछ दिया कि इस चार्ज को हमने हटा के एक म्यूऑन्स किया, उसकी चार्ज हमने क्या किया, चेंज कर दिया, मास को कांस्टेंट रखते हुए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। उसने बोल दिया कि नहीं, चार्ज भी चेंज कर दिया, मास भी चेंज कर दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिगार्डिंग। तो आप ध्यान रखेंगे कि मास क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रिलैक्सेशन टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं कि हमने इंटरप्रिटेशन यहाँ से निकाला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। दूसरा कि चार्ज बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। उसी तरह से अगर हम चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है इसको हमने रिप्लेस कर दिया किसी अदर चार्ज पार्टिकल से, तब उस पर क्या, उसकी मास चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट आएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर उस पार्टिकल्स का मास बढ़ा देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कम कर दिए तो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह से हमने क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को बढ़ाना है तो टेम्परेचर कम कर देंगे, और रिलैक्सेशन टाइम को क्या करना है, कम करना, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। तो रिलैक्सेशन टाइम, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कितने क्वेश्चन थ्योरेटिकली बन सकते हैं। नेक्स्ट, अब क्या, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये रिलेशन आपको हर हाल में याद रखना, क्या है रिलेशन, आई इक्वल टू एन ई ए बी डी। अब इसमें एक टर्म इंपॉर्टेंट है, क्या, आई क्या है, करंट, आई क्या है, करंट, वी डी क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज,
जिसका वैल्यू आपको पता है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और ये क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन। ये क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन। तो इसमें कितने वेरिएबल हो गए, चार्ज आपको ऑलवेज मालूम है, तो 1 2 3। तो वेरिएबल यहाँ क्या क्या हो सकते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स हो गए आई, क्या क्या हो गया, आई एन ए एंड वी डी। अब ये 4 वेरिएबल में से किसी 2-3 वेरिएबल का नोन कर देगा, क्या 3 वेरिएबल नोन होंगे और 1 वेरिएबल क्या होंगे, अननोन। तो आपसे क्या पूछेगा अननोन के बारे में, तो आपको रिलेशन पता है, आई इक्वल टू क्या, NeABD, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन इंटू चार्ज इंटू एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या हो गया, करंट डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया, आई इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, BD लिख सकते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा, है ना। तो इसको भी आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करंट डेंसिटी का, क्या कॉन्सेप्ट, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का मतलब क्या है, करंट डेंसिटी जिसको हम J से डिनोट करेंगे, मतलब करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, बट डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट डेंसिटी होगा। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट डेंसिटी। और मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या लिखेंगे, करंट इक्वल टू करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या, करंट पर यूनिट एरिया। अब यहाँ से आ क्या आया, एरिया ज़्यादा, J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यहाँ से आ गया। तो मतलब एरिया जहाँ पर ज़्यादा, करंट डेंसिटी वहाँ पर क्या कम, एरिया कम तो करंट डेंसिटी ज़्यादा। अब यहाँ पर आएगा, जब नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा तो करंट तो सभी क्रॉस सेक्शन से क्या सेम पास करेंगे, बट करंट डेंसिटी क्या होगा, डिफर होगा। करंट डेंसिटी क्या होगा, डिफर होगा। तो चलिए एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लेते हैं हमने तो यहाँ की एरिया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देखते हैं, ABC। यहाँ से हमने करंट आई फ्लो किया, तो करंट क्या हो जाएगा, सभी पॉइंट पर यहाँ भी करंट आई जाएगा, यहाँ भी करंट आई जाएगा, यहाँ भी करंट आई जाएगा। तो डिफरेंट क्या हो गया, यहाँ की JA वैल्यू अलग होगी, करंट डेंसिटी वैल्यू क्या क्या होगी, अलग अलग। तो जहाँ पर ज़्यादा एरिया वहाँ सबसे कम करंट डेंसिटी, तो सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ, C पे, तो सबसे कम, उससे बड़ा कौन सा होगा। अब C, अब ये वाला क्रॉस सेक्शन ज़्यादा बड़ा है या ये वाला, तो इसके बाद ये दिख रहा, तो ये होगा, और सबसे बड़ा B, क्योंकि सबसे कम क्रॉस सेक्शन एरिया, तो करंट डेंसिटी अलग अलग होंगे। बट जबकि करंट IA इक्वल टू IB इक्वल टू क्या होगा, IC, क्या होगा, IA इक्वल टू IB इक्वल टू IC। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ से क्या पूछ सकता है, कहे ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं J वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय एरिया इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन क्या होता है, अपवर्ड नॉर्मल। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में जब बॉडी क्लोज होगा, क्लोज सरफेस होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड नॉर्मल। ओपन सरफेस होगा तो ओपन सरफेस में 2 डायरेक्शन होगी, वो हम क्या ऑलवेज अपवर्ड नॉर्मल लेंगे। तो यहाँ से क्या लिखते हैं, करंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, J वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर लिख सकते हैं, J डॉट A। तो इसको हम क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर क्या करंट, और ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, ये कैसा क्वांटिटी है,
स्केलर। तो अगर करेंट, तो क्या हो गया, जे वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर हो जाएगा, तो करेंट वहां से कितना पास करेगा, 0। करेंट कितना पास करेगा, 0। तो क्या, अगर करंट डेंसिटी और एरियल वेक्टर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो करंट क्या हो जाएगा, 0। अब जितने भी डॉट प्रोडक्ट, हमने करंट को क्या बना दिया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर। तो अब जितने भी डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन जिस तरह से बनते हैं, जितने भी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हैं, सभी क्या यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। जैसे क्या, और देखते हैं, तो आई इक्वल टू क्या लिखे हैं हम, जे डॉट ए, तो क्या हो गया, जे ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। तो करंट मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0, मतलब जे वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, करंट तभी मैक्सिमम पास होगा। मिनिमम करंट कब पास होगा, जब जे एंटी पैरेलल हो जाए, जे वेक्टर पैरेलल है बट ये एंटी पैरेलल है, इसको क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन है पैरेलल, मतलब जे वेक्टर इधर, ए वेक्टर इधर, तो करंट मिनिमम हो जाएगा। अब इसके साथ जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, बना सकते हैं। तो आपको अगर डॉट प्रोडक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी से, तो आप करंट पे भी अच्छे से पकड़ बना सकते हैं, अगर जितना भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन घुमाना चाहे तो। अगर आपको इस पर दिक्कत है तो मैं वेक्टर का जो डिस्क्रिप्शन इसके पहले लेसन का, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक वेक्टर क्लास का। नेक्स्ट देखते हैं क्या, मोबिलिटी। क्या है इसकी मोबिलिटी, जो सेमीकंडक्टर में ज़्यादा यूज होते हैं। तो मोबिलिटी क्या करता है, मोबिलिटी इज डिफाइंड कैसे करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने वी पहले से पढ़ रखा, क्या, ई, कैपिटल ई बट्टे एम टाउ, ये रिलेशन अभी देखे थे ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहाँ से देखिए तो वी डी डिवाइड बटे ई कर लें तो क्या आ जाएगा, ई टाउ बटे, क्या आ गया, चार्ज इंटू टाउ इंटू एम। तो मोबिलिटी इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं, मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी डी बटे कैपिटल ई, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू चार्ज इंटू रिलैक्सेशन टाइम बटे मास। कोई दिक्कत, अब इसकी यूनिट लिख नहीं रही तो क्या लिखेंगे, यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज। तो चार्ज का क्या होता है, कूलम, चार्ज कूलम सेकेंड पर केजी, या फिर क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं वी डी। और हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या है बताइए, पोटेंशियल का बीच का रिलेशन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ई इक्वल टू वी बटे एल लिखते हैं अपन, लिखते हैं ना। तो ई का यहाँ से डाल सकते हैं, तो वी डी बटे वी इंटू एल हो गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर, वी डी को क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, वोल्टेज के लिए क्या, वोल्ट इनवर्स, क्या वोल्टेज, ये भी यूनिट लिख सकते हैं, ये भी यूनिट लिख सकते हैं। इसका आप डायमेंशनल फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होगा, तो क्या होगा, कूलम को हमने क्या लिख लिया, करंट, करंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, करंट इंटू टाइम, तो करंट इंटू द एम्पियर इंटू टाइम मास, तो क्या हो गया, एम इनवर्स ए टी स्क्वायर, एम इनवर्स ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, तो मोबिलिटी भी देख लिए, तो इसमें भी बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इफेक्ट करके पूछा जाए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहीं कम कराए, मोबिलिटी कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखते हैं हमने आज पढ़ा क्या क्या टॉपिक्स में। तो सबसे पहले हमने देखा करंट के बारे में, करंट क्या, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, अगर इंस्टेंटेनियस है तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये सब पढ़ा। तो आपको जैसे डिफ्रेंसिएशन आता वैसे यहाँ पर, जैसे हमने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, तो क्या था, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो यहाँ भी वही है कि डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी टी, इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं।
फिर हमने क्या डिफरेंट फॉर्म देखा कि फ्रिक्वेंसी दिया हुआ रहेगा तो कैसे होगा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी दिया हुआ तो कैसे रहेगा, टाइम पीरियड है तो कैसे किस तरह से हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया तो करंट कैसे निकाल सकते हैं। दूसरी बात हमने देखा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कंडक्टर के ऊपर, किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, उस पर एक फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके कारण क्या इलेक्ट्रॉन के होते हैं चलना स्टार्ट हो जाता है एक डायरेक्शन में अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें क्या, ई कैपिटल ई टाउ बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें रिप्लेसमेंट करके देखें तो टाउ का इफेक्ट क्या पड़ेगा, चार्ज का इफेक्ट क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, इस तरह से। उसके बाद हमने देखा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जे, तो ये क्या करंट बटे एरिया, और ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। चौथा हमने रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट देखा, तो वो क्या था, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो अब अपने को करंट डेंसिटी पूछ दिया रिलेशन, तो आई बटे एरिया करंट डेंसिटी, तो आई बटे एरिया कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एन ई वी डी। ये आपकी सोच के लिए, ये जितना आप कोरिलेशन करते जाएंगे एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर फिजिक्स के अंदर, आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने की टेक्निक जो होगी और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट होंगे वो आप क्या होंगे, उतने ही फास्ट होंगे। तो आप कोरिलेट करें, ना कि आप सोचें कि हर कुछ हमें हमारे जो पढ़ाने वाले टीचर है वो करके देनी, खुद में सोचिए कि और क्या क्या हम कोरिलेशन कर सकते हैं। तो ये करंट डेंसिटी हो गया। इस तरह से आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर भी कर रहे हैं तो आप इसी तरह से करेंगे, एक क्वेश्चन बना लिया तो बस क्वेश्चन तक लिमिट ना लेके उस क्वेश्चन में देखिए आप क्या क्या चेंज करके क्या क्या आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, उस चीज़ को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें ड्यूरिंग द सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको इस कॉन्सेप्ट में समझ आएगी और कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। प्लीज लाइक शेयर कमेंट and subscribe the physics with Vivek. You will learn a lot how to read the physics books और how to read a concept, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, और अपना फीडबैक देना प्लीज़ ना भूले। थैंक यू।